आईओसी की अध्यक्ष पीटी उषा इस वक्त कुछ बोल रही हैं, सीधे रुक करते हैं। Increased to 2.7 to 50 kg. So they were trying their best, and even I am here to village because I have to be with other athletes also, those who are going to participate today, and get them to be in the track. I think yesterday whole night doctors and all not slept, and they have done they have done their maximum to be in, for Vinesh. So I think doctor will explain or yeah, I think. So what I'll do is I'll just give out a short statement, I think that will clarify things. So I think what's important to understand is that all wrestlers usually participate in a weight category that's less than their natural weight. This gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. Now this process of weight cut involves a calculated restriction of food and water, and we also involve a lot of excessive sweating, which is done with exercise, with sauna, with steam, and thereby we achieve that weight cut prior to the morning weigh-in. Now this weight cut causes weakness and causes some amount of energy depletion, and this is really counterproductive to participation. And hence for participation we do need to then restore energy with some amounts of water and some amounts of energy foods. So you can see this is a fine balance. If you can reduce your weight, you're going to be fighting with less stronger opponents, so most wrestlers prefer that. But at the same time you have to have a strategy which you are going to be able to get back your energy with enough water depletion, with enough water restoration and food. Now this is typically calculated by the team with that wrestler. So Vinesh's nutritionist and team had calculated this to be about 1.5 kgs, and this is a team that's been working with her since many years, and she's extremely comfortable with that team, and this has actually worked with her in the past. So she took in that 1.5 kgs, which is necessary for her to be able to fight those 3 bouts. And I think it's important to remember that usually once you have this weight loss, it's by dehydration. So as soon as you take water, there's going to be a rebound increase in your weight. And during the bouts, because she had 3 really difficult bouts, she did need to have some amount of water, because you do want to rehydrate, because otherwise it's going to be medically a problem to participate. So you do require some amount of nutrition and some amount of water. Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight. And the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. And despite all of this, at about 7:15 to 7:30 is the weigh-in, and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 7:29. It was unfortunately. आईओए की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि किस तरह से उनका वजन बढ़ा और उसको घटाने की रात भर कोशिश की गई। जिस टीम के साथ वो पूरी तरह से कंफर्टेबल थी, उसने पूरी मदद भी की, वजन घटा भी, लेकिन आखिरी के वो 100 ग्राम रह गया, जिसको लेकर कामयाबी नहीं मिल पाई। एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब जब आईओए की इतनी बड़ी टीम संजीव झा जी वहां पर लगी हुई है, देश की ओर से, जैसा कि खुद खेल मंत्री की ओर से सदन में जानकारी भी दी गई है, पूरा देश प्रार्थना भी कर रहा था, तो आपको नहीं लगता है कि सिर्फ सियासत के लिए और विनेश फोगाट के लिए, चूंकि पीछे एक इस तरह का इतिहास जुड़ा हुआ है, इस वजह से अपनी सियासत को आगे लेकर आए और बता दें कि साजिश रची जा रही है यहां पर? क्या इस तरह की बातें और ये तक कह देना कि भैया हमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए ओलंपिक का? इतने खिलाड़ी 4-4 साल तक मेहनत करते हैं, वहां पर जाते हैं, पूरा दमखम लगा देते हैं और नेता आ जाते हैं सामने कि भैया बायकॉट कीजिए।
आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा ना सर, मेहनत तो उन खिलाड़ियों की जा रही है जो 4-4 साल से मुश्किलों का सामना करते हुए लगातार लगे हुए हैं। चित्रा जी, एक बात आप समझिए, आज पूरा देश, जो कल पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था, पूरा देश मायूस है, हम मायूस हैं और आप मायूस हैं। आपको इसी पेरिस ओलंपिक का मैं उदाहरण देता हूं। कीनिया की एक प्लेयर 4000 किलोमीटर में जो धावक था, उसके मेडल कैंसिल किए गए। कीनिया ने फाइट किया। हम तो विश्वगुरु हैं, प्रधानमंत्री 56 इंच सीने के हैं, केवल सदन में जवाब नहीं, लड़ना पड़ेगा इसके लिए। विनेश के साथ अन्याय हुआ है, कैसे लड़े, बर्दाश्त कर लेंगे? कैसे लड़े? अगर मान लीजिए सेमीफाइनल तक वजन ठीक था और अचानक 2 किलो बढ़ गया, तो क्यों नहीं? आखिर क्यों, कौन जिम्मेदार है इसका? और अभी के शर्मा जी कहते राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, इसी खिलाड़ी को आपने राजनीति में घसीटा था, इसी खिलाड़ी को सड़क पर सोना पड़ा था, इसी खिलाड़ी को अपनी मांग को लेकर तो वो सारी चीजें लाकर आज जब मुश्किलों के दौर में खिलाड़ी गुजर रहा है, उस समय तो लेकर आएंगे क्या संजीव जी? हाँ, नहीं, मुझे बात मंशा खेल पर सियासत ज्यादा हावी होती भी नहीं दिखाई दे रही है संजीव झा जी। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर हमारे खिलाड़ी के साथ मैं जवाब देना चाहता हूं, आ रही उनकी बात बनती है। पूरा देश आज विनेश के साथ एकजुट होकर खड़ा है। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर लड़े हैं, मजबूती से लड़े हैं। केवल अपने ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात करने से नहीं होगा। ये आखिर हुआ क्यों और इसका क्या सोल्यूशन तो वो आईओए के लोग वही आकर तो जानकारी दे रहे थे ना, उन्होंने 2.5 किलो वजन कम किया है पूरी रात मेहनत करके। वो लगातार साइकिलिंग करती रही, स्किपिंग करती रही, और भी जो मेडिकल हो सकता है सुविधाएं सारी दी गई उनको। लेकिन जब सियासत हावी हो जाती है तो आम जनता के मन में आप लोग जिस तरह के सवाल छोड़ जाते हैं ना, वो इस देश के खेल के लिए कतई ठीक नहीं है संजीव जी। एक पलट के सवाल पूछिए कि आज तक के ओलंपिक इतिहास में एक उदाहरण बता दें जहां पर अगर सेमीफाइनल खेल चुका पहलवान, उसका वजन ठीक था और फाइनल में बढ़ गया और कम बोले के शर्मा जी। ठीक है, उदाहरण है इनके पास। मैं जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी जवाब दीजिए उनके सवालों पर। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि शराब घोटाला के जो विशेषज्ञ हैं आज कुश्ती विशेषज्ञ बने आगे ना अपनी औकात पे। नेता जेल में सड़ रहे हैं शराब घोटाले पे, आज वो आपकी औकात पहले आ चुकी है जनाब। आपकी औकात पहले आ गई कि आप कितने निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, निम्न स्तर का सोच रखते हैं आप लोग खेल पर लेके। किसी तरह से मैं इसलिए कह दिया। अब आइए, अब मैं अपनी बात कहता हूं। नाम रोशन कर रहा है, मैं समझ गया यार, शराब पिला के आप कुश्ती पहलवान बनाओगे देश में। चलिए चित्रा जी मुझे बोलने देंगे अपनी बारी में। ठीक है, अपनी बारी में प्लीज बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी बारी में। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ये शराब घोटाला करने वाले आज कुश्ती विशेषज्ञ बने हैं। शराब पिला के लोगों खेल पर ही रहते हैं, खेल पर ही रहते हैं। तो ये क्या है स्थिति? हाँ, मैं खेल पे ही बात कर रहा हूँ। अभी आपके रिपोर्टर, पहले तो मैं उस बात का जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि कल जब वो जीती तो प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया। अरे वो गोल्ड के लिए लड़ने जा रही है और मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं संजय झा जी। भारत के इतिहास में ओलंपिक में जाने से पहले खिलाड़ियों से 2-2 घंटे तक बैठकर चर्चा करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, ये करने वाले कोई यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पहले एक घटना नहीं बता सकते आप, जबकि खेल में जाने से पहले, मॉडल जीत के आने के पहले की तो बात छोड़िए। इसलिए इस बात को आप ये मत, यहां पर ज्ञान मत बघारिए। आप क्या कर सकते हैं सबको पता है, आप वही कर सकते हैं, क्योंकि आपको चूहे के मरने पर भी राजनीति करनी है, आपको लाश की भी राजनीति करनी है, आपको इसी तरह राजनीति करनी है, क्योंकि आप मुद्दों है, दिवालिया हो चुकी हमारी पहलवान बेटी। अब रही बात, मैं उस पे आता हूं। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज, अपनी बारी में बोलेंगे। आप कितने दुखी हैं मुझे पता है के शर्मा जी, लेकिन जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना कि ये 2.7 किलो वजन रात भर में क्यों बढ़ गया, इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना के शर्मा जी। मैं चित्रा जी इसी पर आ रहा हूं, मैं इसी पे आ रहा हूं। अभी आपके रिपोर्टर ने जितनी बातें कही और अभी जो आपने बाइट दिखाया है, मैंने पहले ही कहा, वो सब कुछ बता रहे हैं कि 2-3 बाइट कल हुई, उसके बाद उनको कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन लेना जरूरी था, वो उनको दिया गया। पानी नहीं पी रही थी, इसलिए उनके पेट में उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी करना जरूरी था। सब उनके जितने वहां कोच, डॉक्टर, सब लोग लगे हुए, तभी उनका वो वजन भी घटा है। वजन भी घटाने की कोशिश की है। बकायदा उनका पूरा जो स्टाफ है उनका प्राइवेट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी तरह का कोई उसमें इंटरफेरेंस करके किसी ने कुछ और कर दिया। फिर एक ऐसी खिलाड़ी जो स्वयं 3-3 बार बड़े बड़े मेडल जीत चुकी हैं, उन्हें स्वयं पता है, वो ऐसा नहीं है कि विनेश जी को कोई जानकारी नहीं है अपने खाने का, प्रैक्टिस का, सब कुछ उनको पता है।
सारे विशेषज्ञ उसमें लगे हुए हैं। फिर भी यदि उसके अंदर में कोई यदि ये सोच रहा है, कोई राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो उससे निम्न स्तर का व्यक्ति हो ही नहीं सकता इस देश के अंदर। ये केवल खेल के साथ नहीं, उस खिलाड़ी के साथ भी अन्याय है। ठीक है संजीव जी, आपके खिलाड़ी के साथ भी ये विपक्षी दल अन्याय कर। ठीक है, लेकिन उसके पहले WFI के अध्यक्ष का बयान सामने आया है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि मेडल तो यहाँ पक्का था। मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था, और ये हमारे 140 करोड़ देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रह गए। एक सवाल अब जो जहन में आ रहा है वो ये कि काफ़ी करीबी मामला था, 100 ग्राम कहा जा रहा है, 150 ग्राम कहा जा रहा है, जो भी है, क्या सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे? जो डाइटिशियन है, 100% ये सपोर्ट स्टाफ के का ही वो है, क्योंकि उन्हीं के खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है, और इसके जिम्मेदार वही होंगे। आपके पास कोई अभी तरीका है, क्योंकि देखिए जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको लग रहा है अभी भी कुछ उम्मीद है, अभी भी 6-7 घंटे बचे। अभी हम लोगों ने वहाँ मेल कर दिया है पूरे उसके साथ एक बना करके, और बाकी उस पर देखिए वो क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं फिर आगे हम लोग अभी कैसे उसमें केस में भी जा सकते हैं। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कई बातें यहां पर बताई गई हैं। संजीव झा, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर 2 लाइन में। देवेंद्र जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि केवल मेल करने से काम, मेल भेज दिया और जवाब आएगा कहाँ? एक प्रतिनिधिमंडल जाए, मिले आईओ के चेयरमैन से, बात किया जाए, और जो कुश्ती फेडरेशन के जो ओलंपिक के चेयरमैन से बात किया जाए। ये मेल भेजने से केवल काम नहीं चलेगा। देखिए ना, मैंने केन्या का उदाहरण दिया ना आपको। केन्या के प्रेसिडेंट ने इनिशिएटिव लिया, जिसकी सिल्वर मेडल कैंसिल, उसको रीइंस्टेट किया। तो 56 इंच के सेना है प्रधानमंत्री को, विश्व गुरु हैं, लगातार यहाँ से लेकर वहां तक लोग लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप इतने बड़े नेता हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीते हुए विधायक भी हैं दिल्ली के। कम से कम जब भी हम खेल के मामले में सियासत लेकर आते हैं ना, वो खेल की भावना को प्रभावित करता है। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, तमाम खेलों को अगर हम पलट कर देखें तो इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाया था। लगातार 1 घंटे तक स्किपिंग की थी। तो कई ऐसे हमारे पूर्ववर्ती खिलाड़ी रहे हैं जिनका वजन बढ़ा, उसके बाद उन लोगों की ओर से कम किया गया। यहां पर भी 2.5 किलो से ज्यादा वजन उन्होंने कम किया, लेकिन 100 ग्राम रह गया। आपको लग रहा है कि इसमें कोई साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए, या फिर ये एक भारी चूक की ओर इशारा करता है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? देवेंद्र चित्रा जी, मैं इतनी देर से सुन रहा था और मुझे इस बात का बहुत दुख है, जहां पर मैं झा साहब से मैं सुनना चाहता था कि 140 करोड़ हमारे देशवासी हमारे विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, इनको सिर्फ सियासत से, इस चीज से मतलब है। मैं स्वयं फेडरेशन में हूँ, मैंने कहा है कि हर चीज की जांच होनी चाहिए। विदेशी धरा पे ये हुआ है, और जिस खिलाड़ी को हमारी विनेश फोगाट ने हराया है, जो आज तक मतलब वो विजयी रही, कभी हारी नहीं है, तो मुझे स्वयं तो वहां पे भी डाउट होता है, कहीं ना कहीं विदेशी धरा पे कुछ भी हो सकता है। हमारे स्वयं के कोच नहीं थे, हमारे डाइटिशियन नहीं थे, विनेश फोगाट के खुद के थे। हर चीज जांच का विषय है। लेकिन दुख की बात है, आपके चैनल पे मैं सुन रहा था संजीव झा जी को कि वो इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं। यदि यहाँ पे साजिश होनी होती तो इनको क्वालिफाई क्यों होती? फिर वो उन्होंने पहले इतने अच्छे से मैच जीता है, एक तरफा 3-3 मैच जीते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जांच का विषय है। ठीक है, जांच का विषय है, जांच होना ही चाहिए, क्योंकि देश की बेटी का ये सवाल है, उसके गोल्ड मेडल का ये सवाल है, जिसका सपना टूट गया है। लेकिन यकीनन हिंदुस्तान की वो चैंपियन बिटिया है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। उम्मीदें जरूर धराशायी हुई हैं कि इसकी बड़ी चूक है, या फिर साजिश है, या फिर कुछ और। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन विनेश ने जिस तरह का खेल दिखाया है, आगे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा वो गौरवान्वित करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा।